Uh, okay, so here I'm drawing both axes. Okay, the axis which I have drawn in a blue line, that are the original axis. Let me name it. It is Y, and this is X. Okay. Uh, it is 1, 2, 3. It is -1, -2. It is -1 on y-axis, origin. Okay, so now whatever lines I am drawing, you people are going to observe that lines. I am drawing this with red color. Okay, observe the line and tell me that what can you see from this line? Ma'am, 1,0. Yes, that is this this is coordinate. 1,0 is the point which will lie on 1 on x-axis. But I am asking about what can you see by observing this line? Ma'am, the line is parallel to y-axis. Very good. So is it it is parallel to y-axis. So does it having any number on x-axis or y-axis? ये लाइन का कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या फिर वाई एक्सिस पे है? X axis. X axis. X axis. एक्स एक्सिस पे है. And so what about y axis? It is having point on y axis. It is having point on x axis, but still it is parallel to y axis. Am I correct? So how can you give me equation of this line? आप ये line का equation कैसे दे सकते हो मुझे? Yes. Anybody? Actually ये हम लोग आज सीखने वाला है. अगर आपको कुछ आइडिया है, जैसे कि ये देख के आपने अद्वैत ने तुरंत बता दिया मुझे कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस से पैरेलल है ना? तो इसका मतलब ये एक बात, ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया that this line is parallel to y axis, and one more observation is this line don't have any point of intersection on y axis. ये लाइन पे, ये लाइन का और y का कोई भी रिलेशन नहीं है. ये लाइन सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के पॉइंट्स के साथ डील कर रही है. ओके, सो ये हो गई एक बात. आई एम जस्ट पुलिंग इट डाउन. ये लाइन है तो ये कितनी भी बढ़ सकती है. नाउ आई एम ड्रॉइंग अनदर लाइन.
Now give me observation regarding this line. Parallel to x-axis. Parallel to x-axis. Yes, parallel to x-axis and do not having any point of intersection on x-axis. ये जैसे हम लोगों को parallel line की एक important property पता है कि वो the lines do not meet ever. So x-axis and this line is parallel. So now we want to find out equation of this line. हम लोगों को ये दोनों लाइंस के जो एक वर्टिकली ड्रॉ की है मैंने जो y एक्सिस से पैरेलल है और जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की है जो x एक्सिस से पैरेलल है, तो हम लोगों को उनके इक्वेशन ड्रॉ करने हैं, इक्वेशन निकालने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम ये लाइन के इक्वेशन में कहीं पे भी y नहीं आएगा। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? X plus by plus c is equals to 0. 0 equal. Very good. But here do we have anything like y? Y पे कहीं पे ये intersect हो रही है? No, ma'am. नहीं ना? Let us write down coordinates of this line. ये लाइन के ऊपर ये जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ना, इसको हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करते हैं, ये वाले लाइन के भी और ये वाले लाइन के भी। As we know there will be infinite, है ना, वहां पे infinite रहेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2-3 सिलेक्टेड ही पॉइंट्स और उसके कोऑर्डिनेट लिखने वाले हैं। Yes, what will be coordinate of this? दिख नहीं रहा है ना आपको, रुको, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1,3. यहाँ पे लिखते हैं हम लोग A, here it is, B, here this is C. ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग A, B, C के। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ A? 1,3. You just observe the coordinate. B का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2,3. 2,3. ओके। सिमिलरली ये जो पॉइंट है B के बाद का जिसको मैंने नाम नहीं दिया है, उसको मान ले कि वो D है। It will be 3,3. What is common in all these 3 points or all these 3 coordinates? 3 is common. Okay, so can we use this 3 while writing the equation of this line? लिख सकते हैं हम लोग? And the answer is yes. Okay, आपका काम यही था, कोऑर्डिनेट्स बताने तक। सिमिलरली C और D के भी कोऑर्डिनेट्स अभी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। So it is 1,1. Yes, very good. 1,2. 1,2. So you can see here the coordinate on x-axis is common. यहाँ पे x-axis का coordinate common है। कहाँ पे? C और D में। C और D में x-axis का 1. Ma'am, this we have to write in notebook. Yes, you have to write this in notebook and you can give this heading that lines parallel to x
ये हेडिंग आप लोगों को देना है। Here coordinates ABC. Oh, sorry. So equation of this line can be written as, how can we write equation of this line? Equation of this lines can be written as the one point which is constant for all three coordinates, that is indicated as A. जैसे कि ये वाले लाइन में A is equal to 3 है. Okay, it is quite confusing because in general form of linear equation we are having ax plus by plus c. So that A is different, this A is different. Okay, यहाँ पे हम लोगों का इक्वेशन आएगा x is equal to A, and what A indicates, यहाँ पे A क्या indicate करता है? A is the variable on the axis through which the line is passing. Okay, ये आप इतना लिख लो, फिर मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ अलग फिगर ड्रॉ करके, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. Okay, so A So equation of this line will be x is equal to 3. Why 3? Because on the axis 3 is the point on which this line is passing, which is parallel to x axis. अगर x axis से parallel है और y axis के साथ
इंटरसेक्शन है, ये एक्स एक्सिस के एक्चुअल एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है और वाई एक्सिस के 3 पॉइंट से ही पास हो रही है। आप ये लाइन कितनी भी आगे खींचो, इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला नहीं है। Okay, that's why the equation of such lines which is parallel to x axis, the equation is given like, अगर x axis से parallel है तो x is equal to from the point on the axis it is passing, ऐसे लिखते हैं। और अगर वो y axis से parallel है, अगर वो y axis से पैरेलल है, जैसे हम लोगों की ये लाइन है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि x axis पे जो पॉइंट है वो कॉमन है, तो x axis वैसे भी हम लोगों का यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है। सो वैल्यू ऑफ x वी ऑलरेडी नो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Ma'am, y is equals to 1. Yes, y is equal to 1. So our equation is going to y is equal to 1 because this is parallel to y and this is passing through the point on x axis. मैम तो मतलब मैम जो मतलब कॉमन रहता है तो मैम वही ये लेना है क्या नंबर? यस यस, जो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है हम लोगों के ऑर्डर्ड पेयर का, वही लेना है हम लोगों को। एंड मैम जो हमने ए बी जो नाम दिया है तो मैम वो अपने मन से दे सकते हैं क्या मैम हम नाम? हाँ, हम लोगों को सिर्फ कोऑर्डिनेट जानने में आसानी हो इसीलिए हम लोगों ने वो नाम दिए हैं, बाकी वो नाम देने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं जैसे आपको हमेशा स्पॉटलाइट देख देख के पूछूंगी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने वो पॉइंट को सीधा अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैम ये जो अभी खत्म हो गया मैम, अभी इसको हमें सॉल्व नहीं करना है? नहीं, बस इसका इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया, दैट्स इट। ओके मैम। क्वेश्चन किस तरीके का आता है उस पर डिपेंड करता है ना बेटा। ओके, राइट डाउन दिस फास्ट। उसके बाद हम लोग 4.3 एक्सरसाइज दोबारा स्टार्ट करेंगे। मैम डन। डन एवरीवन? यस मैम। Yes, all of you done, boys? अरे सब लोग सो गए क्या? मैम डन। Yes, but what about boys? क्योंकि मैं फिर वाइप आउट करती हूँ, फिर कोई तो भी बोलता है पीछे वाली स्लाइड दिखाओ। ओके, ठीक है, चलो। सो नाउ get back to the questions of exercise 4.3. Is this visible to all of you? यस मैम। 4.3 दिख रही है ना? हाँ। Question number 3, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. Okay, anybody remember such kind of example we have solved? Yes ma'am. Ma'am, first we have to solve the equation and then we have to plot the a. But they don't want us to plot. They have not instructed us to plot it. Ma'am, a equals to 5 by 3. A is equal to 5 by 3. Okay, anybody else? याद नहीं है इसका मतलब बहुत सारे लोगों को। I am not going to solve this. I am just going to give you hint.
कि ये करना कैसे है, बस 3/4 दिया है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन हम लोगों को दिया है, x और y की वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है, ठीक है। सो हाउ विल वी डू दैट? मैम अद्वैत ने लिखा, इसका मतलब उसको आया है। हम लोग क्या करेंगे? 3, what is value of y? That is 4 given to us because 3 and 4 lying on the equation of this line is equal to a. What is x? This is 3 plus this is 7. So this will be 12. This is 3a plus 7. So solve this, you will get value of a. समझ में आया? Everyone, बिल्कुल भी Yes, मुश्किल ma'am. नहीं है। 5/3. Yes, value will be 5/3. Okay? मैम आ गई वैल्यू। हाँ। See, solving arithmetic is not difficult. अगर मैंने आपको बता दिया कि ये करो वो करो वो करो तो कोई डिफिकल्ट नहीं बात होती है, लेकिन मैंने बिना बताए आप मुझे सजेस्ट करोगे, दैट इज द ब्रेन बूस्टिंग थिंग। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 हार्ड नहीं है, जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी is as follows. For first kilometer, the fare is ₹8 and okay, what is the question? पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर सॉल्व करेंगे। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। फॉर फर्स्ट किलोमीटर मतलब घर से निकल गए तो पहले किलोमीटर के लिए फेयर क्या रहेगा आपका? ₹8 रहेगा। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर, मतलब जैसे ही 1 किलोमीटर के आगे आप चलोगे तो फिर ₹5 पर किलोमीटर डिस्टेंस रेट पड़ना शुरू हो जाएगा। पहले ही किलोमीटर के लिए ₹8, बाकी उसके आगे ₹5 Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as y, write the linear equation for the information. Okay? पहले तो जो चीजें हम लोगों को दी है उसके बारे में जानकारी लिखते हैं। ओके? सबसे पहले तो हमारा काम इजी कर दिया कि x और y के लिए क्या लेना है वो दे दिया है। ओके? सो x means what? Distance covered. कितना डिस्टेंस कवर्ड होता है वो। ओके, उसके बाद y क्या दिया है हम लोगों को? टोटल फेयर। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। हाँ, तो एक बार हम लोगों का इक्वेशन आ जाए तो ग्राफ आप लोग ड्रॉ करोगे, ग्राफ में ड्रॉ नहीं करूंगी। मैं आपको हिंट दूंगी, सॉल्यूशंस निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, लेकिन ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सबसे पहले किलोमीटर के लिए प्राइस है ₹8। ओके, तो x टोटल डिस्टेंस जो है वो x है, उसमें से पहला डिस्टेंस चला गया, मतलब बचा कितना डिस्टेंस? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8, है ना। फर्स्ट किलोमीटर मतलब x में से 1 किलोमीटर चला गया तो कितने बचे? मैम 4। x में से 1 चला गया तो कितने बचे? x-1 हाँ, वेरी गुड, x-1। किसी भी चीज में से एक चला जाता है तो हम लोग एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कितने लिखेंगे? व्हाट इज रिमेनिंग डिस्टेंस? सो रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू
x माइनस 1 किलोमीटर। और इसके लिए फेयर क्या है? इसके लिए फेयर क्या बोला है हम लोगों को? अरे 5 बोलो, rupees बताओ। per kilometer. यस, ₹5 per kilometer. So for x minus 1 it is 5 into x minus 1. तो हम लोग अपना टोटल फेयर कैसे लिख पाएंगे? हमेशा याद रखो, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं तो अगर वो हम लोगों को लिखते नहीं आ रही है या इलाबोरेट करते नहीं आ रही है, तो हमेशा वो छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचो। जैसे कि एक बॉल खरीदने गए और एक बॉल की कीमत है ₹5, तो ऐसे 5 बॉल खरीदने गए तो उसकी कीमत क्या आएगी? So which operation you will perform? Multiplication. So same is here. For every kilometer, the price is 5, the fare is 5. So for x minus 1 kilometer, it will be 5 into x minus 1. Okay. So हम लोगों का टोटल फेयर क्या आया? पहले किलोमीटर के लिए तो ₹8 है, वो तो फिक्स है। ओके। उसके बाद जो बाकी बचते हैं, ₹5 है। ओके। तो पहले हम लोग इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके। एंड व्हाट इज टोटल फेयर इज गिवन टू अस? हम लोगों को टोटल फेयर के लिए कौन सा वेरिएबल दिया है? Y. यस, एग्जैक्टली। सी हियर, टोटल, फॉर टोटल फेयर वी हैव गिवन y. सो यहाँ पे हम लोग वो ही डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे फिर distributive property I am using here because I want to simplify this equation. So 5x into 5. Simplify. Y is equal to, this is 8 and this is 5. So 8 minus 5 is 3. So 5x plus 3. तो हम लोगों का linear equation in 2 variable आ गया। चलो इसे अच्छे से लिखते हैं, चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल फॉर्म में इसे लाना चाहते हो तो जनरल फॉर्म में लाना बेहतर है। ओके। जैसे आप before putting boxes for this, it will be 5x minus y. मैंने y को शिफ्ट किया है और 3 को शिफ्ट किया है because I want to bring them in general form. ax plus by plus c के फॉर्म में लाना था, इसीलिए। ओके। तो ये हो गए मेरे इक्वेशन। इक्वेशन आना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक इक्वेशन नहीं आता है हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके। अभी हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट। ओके शर्वरी, नो प्रॉब्लम बेटा। ओके, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देती हूँ। यहाँ आ गया बॉक्स। कितने सॉल्यूशंस निकालेंगे हम लोग? 2. Yes, 2 are sufficient because one line can pass through 2 points. 2 points. Yes, very good. So we will tell me, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, x और y के लिए वैल्यू कंसीडर करते हैं और फिर बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आप ना ये वाला इस्तेमाल करेंगे ना, ये वाला इक्वेशन, तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। y इज इक्वल टू, क्योंकि आपने अगर x के लिए 0 अज्यूम किया, x के लिए यहाँ पे 0 अज्यूम किया आपने, तो फिर आसानी जाती है कि x 0 आ गया तो 5x 0, तो y इज इक्वल टू 3। ओके, समझ में आ रहा है? मैम प्लीज और इजी करने की कोशिश करो। इजी वाले x के लिए ही कंसिडर करो। अभी x के लिए 1 किया यहाँ पे, चलो x के लिए मैं -1 भी करती हूँ यहाँ पे, -1 x के लिए। सो -5 + 3, सो y इज इक्वल टू -2। ये मैंने निकाले हैं, आप कोई भी निकाल सकते हो। एज यू नो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, सो यू कैन फाइंड आउट मेनी। So this is our first solution. This is solution number 1.
that we have to find out the linear equation for this information. And now solution 2 is the graph using above solution. ये यूज करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको Yes. समझ में आ रहा है? आप चाहते हो मैं ग्राफ निकालूं या आप निकाल सकते हो? नहीं मैम, वी विल ड्रॉ. शैल आई ड्रॉ? नो मैम. ओके, पक्का सब लोग? सिर्फ Yes, ma'am. श्रावणी और अद्वैत ही है क्या क्लास में? व्हाट अबाउट आर्या, आदित्य, अंश? Yes, ma'am. No, ma'am. बताओ जल्दी. Ma'am. चलो, आप चाहो तो मैं निकाल देती हूँ. रिदम, ऋग्वेद, ma'am. पृथा, बोलो जल्दी जल्दी क्या करना है. अदरवाइज आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे ओके, Ma'am, next question. हाँ. सो दिस इज गोइंग टू बी होमवर्क. और जब भी लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब जो भी ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो 2 पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना आप, ये ऑर्डर्ड पेयर्ड वाले सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन आए हैं? एक तो आया है 0,3 और दूसरा आया है -1, -2. तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जब प्लॉट करोगे, जो लाइन ड्रॉ करोगे, उसको नाम देना मत भूलना. उसका नाम रहेगा y = 5x + 3. ओके, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है. हाँ, ये वाला क्वेश्चन इजी है. फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7. क्या करना है हम लोगों को? यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ दिए हैं 2 और यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं. 4.6 के लिए 4 इक्वेशन के ऑप्शन दिए हैं, 4.7 के लिए 4 इक्वेशन के ऑप्शन दिए हैं. तो हम लोगों को कैसे करना है? 4.7 करके दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे. करना कैसे है आपको? ये छोटा, ये जब आप नोटबुक में सॉल्व करोगे तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. हाँ, भले ही बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ ना, क्यों अगर ग्राफ बुक में कर रहे हैं, वेल एंड गुड. ओके, ये वाला निकालना पड़ेगा. मैं आपको 4.7 करके दिखाती हूँ यहाँ पे कि कैसे करना है फाइंड आउट. हाँ, तो क्या बोला है? y = x + 2. हम लोग क्या करेंगे? कोई भी एक कोऑर्डिनेट चूज करेंगे. लेट अस चूज कोऑर्डिनेट -1,3. Not late, no need of late. -1,3 is the point or is the coordinate. As shown in graph. ग्राफ में क्या दिखाया है? हम लोगों को 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. कौन से? एक तो ये है 2,0, एक तो ये है 0,2 और तीसरा है -1,3. तो हम लोगों ने उसमें से -1,3 चूज किया. आप चाहे तो अलग भी चूज करते हो, नो प्रॉब्लम. अभी हम लोग -1,3 इक्वेशन में डाल के देखेंगे. कौन से इक्वेशन में? ये जो चारों इक्वेशंस हम लोगों को दिए हैं, ये चारों इक्वेशन में हम लोग ये डाल के देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. जो हो रहा है वो अपने चॉइस में अंदर आ जाएगा, जो नहीं हो रहा है वो बाहर फेंका जाएगा. ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी है हम लोगों का सबसे पहले इक्वेशन है y = 3 = -1 + 2. सो जगह नहीं है इसीलिए ऐसे लिख रही हूँ. ओके, 3 = ये क्या हो गया? इसका आंसर क्या आएगा? 1 विच इज नॉट इक्वल. तो ये जो है ये अपने आप कट हो गया. ये इक्वेशन वैसे बार्ड हो गया हम लोगों के लिस्ट से. ओके,
पूछा क्या है हम लोगों को कि नीचे दिए हुए ये जो दो ग्राफ दिए हैं वो ग्राफ कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं जो चार दिए हैं. ओके, लेट्स गो फॉर 2, दैट इज 3 -1 -2, so it will become 3 is equal to -3, so LHS is not equal to RHS. तो ये भी हम लोगों का कट हो गया. समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? यस मैम. मैम हाँ, मैम आपने फर्स्ट इसमें 3 नॉट इक्वल्स टू 1 लिखा है मैम, वहाँ पे -1 आएगा ना? नहीं, -1 कैसे आएगा? सॉल्व दिस, simplify. -1 plus 2 will be 3 is equal to negative of -1. समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ? वैल्यू सब्स्टिट्यूशन बहुत केयरफुली करना है. यस मैम. Okay, so 3 is equal to 1 plus 2, so 3 is equal to 3. इसका मतलब ये इन है. अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है कि यही इक्वेशन रहेगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट के लिए वो सेटिस्फाई हो गया तो बाकी दोनों पॉइंट्स के लिए भी हम लोगों को चेक करना है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. अगर हुआ तो ही आगे जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे. ओके, देन यस मैम. तो अभी इसके लिए ये जो थर्ड वाला था उसके लिए हम लोगों को ये सेटिस्फाई हो गया पॉइंट -1, 2. सो चेक 0, 2 and 2, 0 for equation y is equal to -x plus 2. ओके, अभी 0, 2 और 2, 0 के लिए भी हम लोग चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. सो y is 2 हियर. हम लोग पहले 0, 2 के लिए चेक कर रहे हैं. Oh my God. ओके, तो सबसे पहले हम लोग 0, 2 के लिए चेक करते हैं. 0, 2 के लिए चेक करते हैं मतलब क्या? हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे. सो -0 plus 2, as you know that negative sign don't have any, sorry, 0 is don't have any sign. 2 is equal to 2, so it satisfy for 0, 2 also. And now 2, 0. 2, 0 के लिए वही वैल्यूज डालेंगे. अभी यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू है -2 plus 2. So -2 plus 2 will be 0. So 0, 0. So what will we write here? That equation y is equal to -x plus 2 is verified for all the points. So graph represents y is equal to -x plus 2. कौन सा इक्वेशन ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है? y is equal to -x plus 2. ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम. Okay, shall I erase? Ma'am, 2 minutes. Okay.
give me a presentative fast. Yes, Arya, Present, ma'am. Advait, Present, ma'am. Atharva, Present, ma'am. Harshajit, Harshajit, Present, ma'am. Present. Khushi, Present, ma'am. Ridham, Ridham. Okay, Saksham, Saksham Pawar, Shamika, Aditi Balarao, Aditya Agrawal, Present, ma'am. Advait, Ansh. Ansh is here. Parikshit, Present, ma'am. Prutha, Present, ma'am. Rigved, Present, ma'am. Shravani Kadam, Present, ma'am. Shrish, Present, ma'am. Bhakti Ikhe, Present, ma'am. Sharvari. She left, no? Okay. Anybody else left?